हम्बल रिक्वेस्ट ये है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आला हुक्काम इस बात का नोटिस ले और इस भाई की कुछ मदद हो सके। अगर आप भी इनकी मदद करना चाहते हैं, कमेंट सेशन में एक नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, उस पे आप राब्ता करें, इनके पास आएँ, इनका विजिट करें, इनके घर आके देखें और अगर आपको लगे कि वाक़ई ये बंदा आपकी मदद का हकदार है तो इसकी मदद करें। ये आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं माँग रहा, ये सिर्फ़ ये चाहता है कि इसके बच्चों के फ्यूचर का कुछ करे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एम एस ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका शादरा टाउन में मौजूद हूँ। शादरा टाउन में मौजूद हूँ और मेरे साथ रिजवान नामी शख्स आप देख सकते हैं जो कि एक टांग से माजूर है। इनसे ये जानते हैं कि ये जो इनकी टांग है ये कब कटी, किस तरह कटी और ये भी जानते हैं कि ये इस वक्त बेरोज़गार है, उसकी जो वजह है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਂਗ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ, जी जी। ਕਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਟੰਗ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਫਰੂਟ ਦੀ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਚਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਰੇਹੜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਪੀਰਾ ਫੌਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਮੇਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਤੂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ 12 ਸਾਲ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੌਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ 10,000 ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 7,000 ਹੈ। ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੈਂਟ ਤੇ। 17,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ? ਬਸ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੜੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸਲ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੰਧ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਲਾਤੂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰੇਹੜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ होना और ये आप अपनी विंडो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये जो रेहड़ी बना के दी है जो कि हर जगह पे किसी भी बाजार में वजीर आला की तस्वीर लगी है, एक प्रॉपर उनको सेटअप बना के दिया है। तो क्या आपको इस तरह का सेटअप वगैरह नहीं किसी ने बना? नहीं, मैं गया था, उन्होंने बोला कि आपको नहीं मिल सकता, आप इधर के रहायशी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। अभी जो है ना ये स्कीम हमने बंद कर दी है, तो इस वजह से मुझे नहीं मिली। या आपने देखा होगा ਚੱਕੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੋ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਿਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਸਕਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ 1000-1200 1000-1200 ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਫੀਡਰ ਪੀਂਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਜ ਫਾਤਮਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पापा क्या करते हैं आपके? ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ। पापा क्या करते? ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀ। रेड़ी लांदे ने? ਕਹਿੰਦੇ किस ਹੁਣ चीज दी रेड़ी लांदे ने? किस चीज की रेड़ी लांदे ने? फ्रूट वाले। आपने स्कूल जाना है? पढ़ना है आपने?
क्या बनोगी बड़ी होके? क्या बनोगी? क्या बनोगी? डॉक्टर बनना है आपने? वो देखो वहां पे नाज़रीन, मासूम बच्ची है, 2 ढाई साल एज है, और आप हिसाब लगा ले वो वालदैन उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जिनके बच्चे छोटे हो। और ख्वाहिशें हर इंसान की होती है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरे बच्चे स्कूल ना जाए, लेकिन मजबूरी और हालात बहुत कुछ करवा देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब आप बेरोजगार हैं, किराए पे आपका घर है, तो सिस्टम जो है वो किस तरह चल रहा है? बच्चों की तनख्वाह आपने बताई कि 10,000 एक और 7,000 एक, 17,000 महीने में, क्या किराए के मकान में आपका सिस्टम किस तरह चलता है? बड़ा मुश्किल चल रहा है, बस गुजारा कर रहे हैं, अभी क्या करें। तो मुश्किल बड़ा गुजारा हो रहा है, बस अभी क्या कर सकते हैं हम। जब आपने रेडी लगाना छोड़ी, इसके बाद आपने दोबारा कभी कोशिश की रेडी वगैरह लगाने की या कोई काम करने की? जगह ही नहीं है तो कहाँ लगाएं, गलियों में अभी मैं टांग से माजूर हूँ, नहीं लगा सकता, मेरे पास जगह ही नहीं है, कैसे लगाऊं। गलियों में तो मैं घूम फिर के नहीं लगा सकता ना। मुझे ये बताइएगा, आपकी टांग जब कटी, 3 साल आपने बताया, तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं गांव में रहता था सिंध में, हम्म। फिर सैलाब की वजह से हम इधर आ गए लाहौर। मैंने बोला अच्छा मुल्क है, माशाल्लाह लाहौर है, मरियम नवाज साहब का शहर है, हम आएंगे हमारे हालात बदल जाएंगे। इधर लाहौर आए हुए आपको कितना वक्त हो चुका है? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी। तो 3 सालों में आप सिंध में कंफर्टेबल थे ज्यादा, या लाहौर आपको बेहतर लगता है? लाहौर पे बेहतर लगता था, अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी काम नहीं है, कारोबार नहीं है, अभी क्या करें हम। पहले हमें बेहतर लगता था, इसीलिए हम अपना वतन छोड़ के इधर आए कि ये अच्छा सूबा है पाकिस्तान का, लाहौर। तो इसलिए अभी हम इधर आए हैं। तो अभी हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना कुछ काम मिल रहा है, ना कहीं एक काम करने जाता हूँ, फैक्ट्री वगैरह में मैंने ट्राई किए हैं, तो वो कहते हैं आप टांग से माजूर हैं, आपको हम नहीं रख सकते, आप खड़ा ही नहीं हो सकते सही तरह, तो आप कैसे काम पे करेंगे। इसलिए 2-3 जगह पे मैंने ट्राई किया है, उन्होंने काम पे नहीं रखा मुझे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते मरियम नवाज साहिबा को, जिन्होंने गरीबों के लिए बेशुमार, 1 साल के अंदर एक बेशुमार गरीबों के लिए प्रोजेक्ट बनाए, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज़ ਨੂੰ गुजारिश करना कि मैं जरा ना लातू माजूर बंदा वा, ताकि मेहरबानी है आपके, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने, ताकि मैनू एक जगह मिल जाए परमट, जगह मैं अपने बच्चों का हक लाल दा रिजक कमा सका। कोई हुकूमत को मैं इमदाद नहीं, कुछ भी नहीं मंगता। इन्ने इन्ने मरियम नवाज साहब अच्छे काम कर रही, लोगों वास्ते मकान बना रही है, सारा कुछ कर रही है, जिंदा हक है उन्होंने क्यों नहीं मिल रहा। मैं माजूर हाँ, मैनू हर चीज़ की जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, 4 मेरिया बेटियां ने, कमान वाला मैं कला वा, मैनू नहीं मिलती कोई चीज़। कैसे अच्छे काम कर रहे, रोड का माशाल्लाह कितना सब कुछ किया, तो गरीबों वास्ते कुछ नहीं कर रही। जिन्ना हकदार है उन्होंने कुछ भी नहीं मिल रहा, जिन्हें नहीं हकदार उन्होंने हर चीज़ मिल रही है। ये नाज़रीन रिजवान हैदर साहब मेरे साथ मौजूद थे, इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी। ये आप बच्ची देखें, कितनी प्यारी ये माशाल्लाह बच्ची है। इसका कसूर क्या है? इसका कसूर ये है कि ये गरीब है। इसका कसूर ये है कि ये एक गरीब घर में पैदा हुई। इसका कसूर ये है कि इसका बाप डिसेबल पर्सन है। मासूम बच्चे हैं, इनका भी दिल करता है ये भी अच्छी तालीम हासिल करें, इनका भी दिल करता है ये भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छा पहने। और ऐसे कोई वालिदैन नहीं होंगे जो कि अपने बच्चों को ब्राइट फ्यूचर ना देना चाहते हों। इनकी भी ख्वाहिश है मेरे बच्चे पढ़ें, अच्छे स्कूल में जाएँ, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन हालात बहुत कुछ करवा देते हैं। इनकी तमाम तर आपने बात सुनी, एक रेहड़ी लगाने वाला बंदा दिहाड़ी का कितना कमा लेता होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में एक घर चलाना, और वो घर जो कि रेंट पे हो, फिर 4 बच्चे, उनका खर्चा, फिर घर का रेंट, बिजली का बिल, ये तमाम मामलात है। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से हम्बल ये रिक्वेस्ट है, आप कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ, तो आएँ इन बच्चों के सर पे, इनकी शक्लें देखें, इन पे तरस खाएँ, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त का हाथ रखें। इन्हें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं कि आप इनके वालिद को एक छोटा-सा स्टॉल लगा दें, जहाँ पे बैठ के ये अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा सके। ये एक टाँग से मज़दूर है, लेकिन ये किसी से माँगना नहीं चाहते। और सैल्यूट पेश करता हूँ मैं इस भाई को, जो कि इस दौर में बजाए इसके कि लोगों के आगे हाथ फैलाए, ये सिर्फ़ ये चाहता है मुझे मेरे रोज़गार के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, मेरे लिए कोई ऐसे असबाब बनाए जहाँ पे बैठ के मैं अपने बच्चों का रिज़्क़े हलाल कमा सकूँ, मैं किसी से माँगना नहीं चाहता। इस बंदे की गैरत ये गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाए। ये तो सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल करता है कि मुझे भी कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठिकाना दे दे मरियम नवाज़। इतना काम किया आपने पंजाब भर में,
ہم اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جتنا آپ نے کام کیا ودن 1 ایئر، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ میرے ہاتھ آپ کے آگے جڑے ہیں کہ ان معصوم بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ کریں. یہ بہت پریشان ہیں، اور جس گھر میں بے روزگاری ہو اور غربت ہو، وہاں پہ کس طرح سروائیو کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں. ہمبل ریکویسٹ یہ ہے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ حکام اس بات کا نوٹس لے اور اس بھائی کی کچھ مدد ہو سکے. اگر آپ بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیشن میں ایک نمبر ہم مینشن کر رہے ہیں، اس پہ آپ رابطہ کریں، ان کے پاس آئیں، ان کا وزٹ کریں، ان کے گھر آ کے دیکھیں. اور اگر آپ کو لگے کہ واقعی یہ بندہ آپ کی مدد کا حقدار ہے تو اس کی مدد کریں. یہ آپ سے زور زبردستی سے نہیں مانگ رہا، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے فیوچر کا کچھ کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.